عام انتخابات سے صرف ایک ہفتہ باقی، سندھ میں سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات۔ آج سندھ نے 625 اہلکاروں کی اضافی نفری کراچی پولیس چیف کے سپرد کر دی ہے۔ کرائم ویلفیئر ٹریننگ، لیگل برانچ اور آئی ٹی ونگ سمیت 22 مختلف شعبوں سے 500 اہلکار ڈیوٹی دیں گے۔ معاون سے نائب قاضی سطح کے 100 اہلکار انتخابات میں پہرے داری پر مامور ہوں گے۔ پولیس چیف کا کہنا ہے کہ پولیس کی سیکیورٹی 3 لیئرز پر بنائی گئی ہے۔ پاک فوج، رینجرز اور پولیس کے اہلکاروں کی تعداد 55,000 ہوگی۔ ہمارا ایک سیکورٹی پلان ہوتا ہے، اس میں پری الیکشن ڈیوٹیز ہوتی ہیں، آن دا ڈے آف الیکشن ہوتی ہیں اور آفٹر الیکشن ہوتی ہیں۔ پری الیکشنز میں ہمارے جو ہے وہ آئی بی اوز پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اس پہ کچھ ایسے حساس علاقے ہیں جہاں پہ ہمیں کچھ شک و شبہات ہیں کرمنلز کے حوالے سے، ان پہ ریڈز ہو رہے ہیں۔ فلیگ مارچ جس کا آپ نے ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ہی جو الیکشن سے پہلے جو الیکشن مٹیریل کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے وہ بھی پولیس کی سیکیورٹی اس میں ہوتی ہے۔ الیکشن کے دن کے حوالے سے ہماری ڈپلائمنٹ ٹوٹل 45,000 ہوگی، جس میں سے 3 قسم کی ڈیوٹیز ہیں۔ ایک اسٹیٹک ڈیوٹیز ہیں جو پولنگ اسٹیشنز پہ ہوں گے، دوسری لیئر میں ہمارے پاس کوئک ریسپانس فورس اویلیبل ہوگی جو 10 سے 12 پولنگ اسٹیشنز کے کلسٹرز پہ ایک کیو آر ایف کی ٹیم ہوگی تاکہ کوئکلی ریسپانس کیا جا سکے ان کیس آف اینی ایمرجنسی اور لا اینڈ آرڈر۔ تیسرا جو لیئر ہوگا وہ ہوگا ریزرو فورس کا، جو ایس ایچ او سے لے کے ایڈیشنل آئی جی تک سب کے ساتھ وہ فورس اویلیبل ہوگی وتھ اینٹی ہرائٹ گیجٹس۔ ان کا یہ کام ہوگا کہ ان کیس آف لا اینڈ آرڈر سچویشنز وہ وہاں پہ ریسپانس کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سپورٹ ہوگی ہمیں پاکستان آرمی کی اور رینجرز کی۔ رینجرز کے ہمارے ڈپلائمنٹس جو ہیں وہ تقریباً 6,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ کی جا رہی ہیں کراچی میں، اور 4,000 کے لگ بھگ پاکستان آرمی کی بھی ڈپلائمنٹس ہوں گی الیکشن ڈیوٹیز پہ۔ تو کل ملا کے کوئی 55,000 جو ہے وہ پاکستان آرمی، پاکستان رینجرز اور سندھ پولیس کی جو ڈپلائمنٹس ہوگی وہ الیکشن دن پہ ہوں گی کراچی کے لیے۔ بجٹ جو ہوتا ہے وہ کچھ جیسے گاڑیاں ہائر کی جائیں گی ان کے لیے ہوتا ہے، فیڈنگ چارجز کے لیے ہوتا ہے، اور آکسیلریز میں ہمیں جو لوگ امپلائی کرنے پڑتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے۔ تو ڈسٹرکٹس نے جو ڈیمانڈس کی ہیں مور اور لیس تقریباً وہ ساری ڈیمانڈس ان کی پوری ہو گئی ہیں، تو بجٹ کا کوئی بھی پرابلم نہیں ہے۔ جتنی ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ گورنمنٹ نے ان کو وہاں پہ دیے ہیں بجٹس۔ نفری کی تقریباً جو فائنل کیلکولیشن کی تھی ہم نے، اس میں 10,000 کی شارٹیج آ رہی تھی۔ اس کو ہم جو ہے وہ آکسیلریز سے اور دوسرے ڈپارٹمنٹ سے ہم لوگ لے رہے ہیں۔ جیسے فیمیل اسٹاف میں ہمیں شارٹیج تھی تو ہمیں سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ لیڈی ہیلتھ وزٹرس ہمیں تقریباً 3,000 کے لگ بھگ وہ ہمیں ملیں گی۔ باقی ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے، فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے، اینٹی انکروچمنٹ سے، یہاں سے میں لوگ ملیں گے۔ آکسیلریز میں جو بجٹ آئی ہوئی ہے ڈسٹرکٹس میں، ان سے ہم پرائیویٹ سیکورٹی گارڈز کو ہائر کریں گے۔ تو جو باقی شارٹیج میں نے آپ کو بتائی ہے وہ ساری اسی طریقے سے پوری ہو جائے گی۔ عام انتخابات کے موقع پر سندھ بھر میں رینجرز پولیس کی مشترکہ فلیگ مارچ سنیپ چیکنگ کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کی زیر صدارت ہیڈ کوارٹرز پاکستان رینجرز سندھ میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں کراچی کی امن و امان کی صورتحال اور عام انتخابات کے انتظامات کا خصوصی جائزہ لیا گیا ہے۔ اجلاس میں آئی جی پولیس، صوبائی الیکشن کمشنر سندھ، ایڈیشنل آئی جی کراچی، سیکریٹری ہوم ڈپارٹمنٹ نے شرکت کی، جبکہ دیگر اعلیٰ شخصیات بھی موجود تھیں۔ ترجمان سندھ رینجرز کے مطابق رینجرز کے دستے بطور کوئک ریسپانس فورس علاقوں میں تعینات رہیں گے۔ ضابطۂ اخلاق کی مکمل پاسداری کو یقینی بنایا جائے گا اور خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی۔ ممانعت کے باوجود وال چاکنگ کے ذریعے امیدواروں کی انتخابی مہم جاری ہے۔ الیکشن کمیشن کی مانیٹرنگ ٹیموں اور بلدیاتی اداروں نے ان کے خلاف کیا کارروائی ہے، یہ بتا رہی ہیں رضوان احمد اس رپورٹ میں۔ الیکشن جیتنے کی خواہش نے شہر کی خوبصورتی کا دشمن بنا دیا۔ امیدوار وال چاکنگ کرنے لگے، در و دیوار داغدار کر دیے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین قانون سازی کرتے ہیں، مگر ان اسمبلیوں تک پہنچنے کی دوڑ میں وال چاکنگ کے غیر قانونی عمل کا سہارا لے کر ووٹرز کو اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور شہر کی خوبصورتی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ عوام اس عمل کو ناپسندیدہ قرار دے رہی ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ پہلے ہی مہنگائی کے ستائے ہوئے ہیں، در و دیوار کو رنگ و روغن کرتے ہیں، مگر امیدوار وال چاکنگ کر کے ساری محنت پر پانی پھیر رہے ہیں۔ تو مہنگائی ہے، اوپر سے سفیدی اور رنگ روغن پہ اتنا خرچہ آتا ہے، یہ آتے ہیں اور لکھ کر چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ظاہر ہے اب صفائی تو نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ملک کی جو ہے نا دیواروں کی حفاظت کرنی چاہیے۔
اشتہار نہیں لگانی چاہیے. شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ ایسے امیدواروں سے کامیابی کے بعد کیا توقع رکھیں جو اپنی کامیابی کے لیے ابتدا میں ہی وال چاکنگ کے غیر قانونی عمل کا سہارا لے. کیمرہ مین عثمان مصطفیٰ کے ساتھ رضوان احمد سٹی 21. انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر انتظامیہ نے ایکشن لے لیا. اورنگی ٹاؤن میں مشترکہ آپریشن کے دوران تمام اشتہاری مواد کو ہٹا دیا گیا. رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے. اورنگی ٹاؤن کے میونسپل کمشنر آغا فہد اور مومن آباد ٹاؤن میونسپل کمشنر سید زین علی شاہ نے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر ویسٹ زاہد فیاض کے ہمراہ مشترکہ حدود میں کارروائیاں کی. اس دوران ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر تمام سیاسی جماعتوں کے بینرز، پوسٹرز، بل بورڈ اور جھنڈوں کو اتار لیا گیا. ہماری میٹنگ ہوئی تھی ڈی سی ویسٹ کے ساتھ اور ایس ایس پی ویسٹ کے ساتھ. تو انہوں نے ہدایت دی تھی کہ آپ یہ اپنے بینر جتنی بھی ہیں یہ آنریبل ہائی کورٹ کی طرف سے حکم آیا کہ ہٹائیں. تو رات کو پھر ہم نے آپریشن کی تیاری کی 12 بجے. اس کے اندر میں بھی تھا، اس میں اپنا مومن آباد کے جو ایم سی صاحب ہیں زین شاہ صاحب وہ بھی تھے. ہم دونوں نے کمبائنڈ ایک آپریشن کیا تھا. آپریشن میں شامل ملازمین کا کہنا تھا کہ کارروائیوں کا سلسلہ الیکشن کے انعقاد تک وقفے سے جاری رہے گا. یہ میرے اعلیٰ حکام کے کہنے پہ ہوئی ہے کارروائی، اور یہ پیناپیکس، اسٹیمر اور یہ بینر وغیرہ لگے ہوئے تھے. ہمیں بھی یہ ہدایت ہے کہ الیکشن تک آپ کو یہ کارروائی کرنی ہے. انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا سلسلہ شہر بھر میں جاری ہے، جس کے خلاف انتظامیہ کارروائیاں تو کر رہی ہے، مگر اس کی رفتار کو بڑھائے بغیر احکامات پر مکمل عمل درآمد مشکل دکھائی دے رہا ہے. کیمرہ مین عثمان مصطفیٰ کے ساتھ رضوان احمد سٹی 21. اب آپ کو بتائیں کہ عام انتخابات کی گہما گہمی جاری ہے. طلباء کی آگاہی کے لیے نجی اسکول میں الیکشن کا انعقاد کیا گیا. اسکول کے طلباء طالبات نے اپنی پسند کے گروپ کو ووٹ کاسٹ کیا. صبا پرویز کی رپورٹ ہے. قوم کے معماروں کو الیکشن سے آگاہ کرنے کا عزم. ملک بھر میں عام انتخابات کی تیاریاں پورے زور و شور سے جاری ہیں. اس حوالے سے اسکولوں میں بھی طلباء کو الیکشن کے فوائد اور اس کے طریقہ کار کے متعلق بتایا جا رہا ہے. شہر کے ایک نجی اسکول میں ایسے ہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا. نجی اسکول کے سی ای او ارشد ملک نے بتایا کہ 300 سے زائد طلبہ نے ووٹ کاسٹ کیا. اسکول پرنسپل بولی طلبہ کے ذریعے گھروں میں پیغام پہنچا رہے ہیں کہ ووٹ دینا کتنا ضروری ہے. تقریباً 300 سے زائد طلبہ اس وقت موجود ہیں ہمارے پاس، جو باری باری اپنی کلاس میں آ رہے ہیں اور اپنے منتخب جو ہے اپنے مانیٹرز اور پریفیکٹس وہ سلیکٹ کر رہے ہیں. بچوں کو صرف یہ تربیت دینی تھی کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ووٹ کیا ہے، ووٹ قوم کی امانت ہے، وائی ووٹنگ از نیسیسری، ہم کیوں ووٹ دینا چاہتے ہیں. یہی بچے گھر میں جا کے اپنے پیرنٹس کو بتائیں گے، قائل کریں گے ان کو کہ ووٹ نہ دینا ضروری نہیں ہے، ووٹ دینا ضروری ہے، کیونکہ ووٹ قوم کی امانت ہے اور امانت کو ہمیں صحیح استعمال کرنا ہے. ووٹ کاسٹ کرنے والے طلبہ انتہائی پرجوش دکھائی دیے. کہا اپنے پسند کے گروپ کو ووٹ دیا ہے. ابھی ہم نے ووٹ کاسٹ کیا ہے. پہلے ہمیں پیپر ملا تھا، پھر ہمارے نشان لگایا گیا ہے اور اس کے بعد ہم نے بیلٹ باکس میں ڈالا. اپنے پیرنٹس کو باہر نکالیں اور ووٹ کاسٹ کریں، کیونکہ ووٹ تو جو ہے وہ قوم کی امانت ہے. ووٹ ضرور ڈالنا چاہیے، ووٹ ڈالنا سب کا حق ہے. الیکشن کے موقع پر طلبہ کے 6 گروپ تشکیل دیے گئے تھے جنہیں طلبہ نے ووٹ دیا. کیمرہ مین اجلان کے ہمراہ صبا پرویز سٹی 21. مسلم لیگ کاف نے صوبے بھر میں اپنے امیدوار پیپلز پارٹی کے حق میں دستبردار کر دیے. کاف لیگ کے صوبائی صدر طارق حسن کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو کامیاب کرانے کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کر دیں گے. سعید غنی اور وقار مہدی نے بھی کاف لیگ قیادت کا شکریہ ادا کیا. انوشا جعفری کی رپورٹ دیکھیے. سندھ میں پیپلز پارٹی کی کامیابی کے راستے کھل گئے. کاف لیگ نے صوبے بھر میں جعلی امیدواروں کی حمایت کر دی. مسلم لیگ کاف سندھ کے صدر طارق حسن کی رہائش گاہ پر مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب میں پی پی سینیٹر وقار مہدی نے کاف لیگ قیادت کا شکریہ ادا کیا اور دعویٰ کیا کہ صوبے بھر میں 100 سے زائد نشستیں حاصل کریں گے. ہمارے صوبے کے صدر ہیں طارق حسن صاحب، ان کا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں صوبے سندھ کے اندر جو امیدوار ہیں ان کو پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے حق میں دستبردار قرارے. میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. پیپلز پارٹی اپنے دوستوں کے تعاون سے، عوام کی طاقت سے، عوام کے ووٹ کی طاقت سے صوبے سندھ کے اندر انشاءاللہ ہم جو ہے
100 से ज़्यादा सूबाई असम्बली की सीटें इंशाल्लाह हासिल करेंगे। इस मौके पर तारिक हसन ने यकीन दिलाया पीपल्स पार्टी की हिमायत का फैसला सूबे और मुल्क की बेहतरीन मफाद में किया। काफ लीग के कारकुनान अपनी तमाम तवानाइयाँ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने में सर्फ करेंगे। हम अपने कैंडिडेट्स को पीपल्स पार्टी के हक में जो है वो दस्तबरदार कर रहे हैं। हमने यही समझा कि मुल्क के वसीदर मफादात में जो हालात हैं, इन हालात में जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं उसमें बेहतर यही था, और अब हम कोशिश करेंगे और यकीन दिलाते हैं कि हम मिलकर आगे बढ़ेंगे और मामलात को आगे बढ़ाएंगे और मिलकर अब हम सपोर्ट करेंगे पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी कराची के सदर सईद गनी ने नाज़माबाद वाक़ये पर कहा, पुलिस के सामने झगड़ा हुआ, निगरां हुकूमत और पुलिस की कोताही की वजह से हालात ख़राब हुए। ये जो वाक़या हुआ था ये पुलिस की मौजूदगी में हुआ था, और हमारे जो कैंडिडेट हैं वहाँ के राव वहीद साहब, उन्होंने जब वो पहुँचे, जब सूरत हाल उन्होंने देखा कि ठीक नहीं है, तो पहले उन्होंने 15 पे कॉल की। इसमें कोताही की गई है हुकूमत की जानिब से, पुलिस की जानिब से, इदारों की जानिब से, और उसकी वजह से ये हालात जो है थोड़े से ख़राब हुए। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि एक वाक़े को बुनियाद बनाकर पूरे कराची के इंतखाबात को आप ये नहीं कह सकते कि वो कोई खतरे में आ गए हैं। इस मौके पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने काफ लीग क़यादत का शुक्रिया अदा किया और इस अज़्म का भी अदा किया कि शहर और सूबे की तरक्की के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कैमरामैन शकील के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21 न्यूज़, कराची। इलेक्शन के हवाले से प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के तहत सेमिनार, नई हुकूमत के लिए चैलेंजेस और रोड मैप के मौज़ू पर रोशनी डाली गई। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने ख़िताब में कहा कि तमाम मसाइल के होते हुए इंतखाबात होंगे, सियासी पार्टियों में ही जमहूरियत नहीं है। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास का कहना था किसी सियासी जमात के पास कोई बेहतर मंशूर नहीं है। तहा मलिक की रिपोर्ट है। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। वफाकी वजीर इत्तलात ने इलेक्शन मुलतवी होने की अफवाहों को रद्द कर दिया। कौमी अजायब घर में प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के तहत इंतखाबात 2024 के मुतालिक सेमिनार बाउनवान नई हुकूमत के लिए चैलेंजेस और रोड मैप का इनेकाद किया गया। सेमिनार में वफाकी वजीर मुर्तजा सोलंकी समेत मारूफ सहाफ़ी महमूद शाम, मज़हर अब्बास ने भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुर्तजा सोलंकी का कहना था कि जमहूरी निज़ाम और इंतखाबी अमल में बहुत सी खामियों के बावजूद हर एक का इस बात पर इत्तेफाक है कि इंतखाबात होने चाहिए। कुछ जमाती लेवल प्लानिंग फील्ड की शिकायत करती हैं। क्या कोई इनसे पूछे कि क्या इनकी जमात के अंदर जमहूरियत है? हमारा जो जमहूरी निज़ाम है वो उसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं, और इंतखाबी अमल के बारे में भी खामियां हैं। उसके बावजूद मेरे ख्याल में यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी शख्स इससे इख्तलाफ नहीं करेगा कि उसके बावजूद ये इलेक्शंस होने चाहिए, ये अमल चलता रहना चाहिए। फलां पार्टी कह रही है कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, उनसे ज़रा पूछे आपकी अपनी पार्टी के अंदर जमहूरियत है? तकरीब से मारूफ सहाफ़ी महमूद शाम और मज़हर अब्बास ने हाजिरीन से खिताब करते हुए तारीखी पस मंज़र को भरपूर तरीके से उजागर किया। गुज़श्ता 4 दहाइयों से इतने इंतखाबात हुए हैं, 1985, 88, 93, 96, 2002, 2008, 2013, 2018, इनसे इतना इंतशार बरपा हुआ है कि इस मरतबा रियासत और निगरान हुकूमतें इस अफरा तफरी को समेट नहीं पा रही हैं। कह रहे हैं, कहते हैं कि इलेक्शन हो रहा है, ये यकीन भी कर लेते हैं, लेकिन जितने सिलेक्शंस मैंने देखे हैं अपनी रिपोर्टिंग के करियर में, यकीन जाने मुझे किसी इलेक्शन पर एतबार नहीं है। सेमिनार से खिताब के दौरान वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि मईशत, खारजा पॉलिसी, मुकामी हुकूमतें, गवर्नेंस और सिविल सर्विस रिफॉर्म्स मुल्क के हकीकी और बुनियादी मसाइल हैं। हमें इन मसाइल पर गुफ्तगू करनी चाहिए और इलेक्शन के बाद मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर कौमी इत्तेफाकी राय होना चाहिए। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ तहा मलिक, सिटी 21। सिंध रेवेन्यू बोर्ड की बेहतर टैक्स वसूली पर निगरान वज़ीर आला ने शाबाशी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा, सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने रवा माली साल के पहले 7 महीनों में 126.8 बिलियन रुपए वसूल किए। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा कि गुज़श्ता माली साल 2022-23 के पहले 7 महीनों के दौरान वसूली की शरह 94.6 बिलियन रुपए थी, जो कि 34% इजाफे की नुमाया शरह को जाहिर करता है।
SRB मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद भी टैक्स वसूली में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला हाउस से जारी एक बयान के मुताबिक SRB ने जनवरी 2024 में 18.3 बिलियन रुपए टैक्स की मद में वसूल किए हैं। गुलशन इकबाल टाउन इंतजामिया ने अवामी मसाइल के बरवक्त असाले के लिए मोबाइल ऐप मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया। चेयरमैन टाउन डॉक्टर फवाद अहमद की ज़ेरे सदारत इजलास में इस सिलसिले में इक़दाम का जायज़ा लिया गया। शुरा को बताया गया कि ऐप के ज़रिए न सिर्फ अवामी शिकायत का अंदराज ऑनलाइन मुमकिन होगा, बल्कि शिकायत का मौजूदा स्टेटस और दीगर दफ्तरी अमूर समेत ऑनलाइन टैक्सेस की सहूलत भी मैसर होगी। चेयरमैन डॉक्टर फवाद अहमद का कहना था कि ये एक बेहतरीन इक़दाम होगा जो बल्दियाती अमूर को स्ट्रीमलाइन करने में समेत खराबियों को दूर करने में भी मदद फ्राहम करेगा। कोशिश है जदीद तकाज़ों को इस्तेमाल में लाकर आवाम के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड में अंधेर नगरी चौपट राज 11वीं जमात के तलबा के लिए स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराना भी मुश्किल हो गया। बैंक के बाहर तलबा की लाइनें लगीं तो मखसूस गिरोह ने पैसे लेकर फॉर्म जमा कराना शुरू कर दिया है। रकम न देने वाले तलबा को हरासा भी किए जाने का इंकशाफ सामने आया है। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची में 11वीं जमात के मुतनाज़ा नताइज। स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराना भी तलबा के लिए इम्तिहान बन गया। इंटरमीडिएट बोर्ड में मखसूस गिरोह रिश्वत वसूली करने लगा। लाइन से बचने के लिए तलबा स्क्रूटनी फॉर्म के अलावा भी पैसे देने पर मजबूर हैं। मैं सुबह से आया हूँ स्क्रूटनी के लिए, यहाँ भटक रहा हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी गाशा ले रहे हैं कि भाई मैं कर दूंगा, 5,000 रुपये दे दो, 2,000 रुपये दे दो, मैं कर दूंगा ये चीज़। और बाकी जो अंदर वो फॉर्म भरने आ रहे हैं बोले 200 रुपये दे दो, वो फॉर्म भर के दे रहे हैं आपको। इंटर बोर्ड में बैंक के बाहर लाइन में लगे तलबा बोर्ड इंतजामिया से नाला दिखाई दिए। कहते हैं कि स्क्रूटनी फॉर्म सिर्फ एक बहाना है। नताइज की खराबी का जिम्मेदार इंटर बोर्ड कराची खुद है। मेरी बात यही हुई तो उन्होंने कहा स्क्रूटनी करवाई है। जगह जगह हम लोग सुबह से आए हुए हैं, जगह जगह धक्के खा रहे हैं। कोई कहता है कमरा नंबर 2 में जाओ, कोई कहता है 17 में जाओ, कोई कहता है कि पैसे दें हमें तो हमारे जो ना ये काम आपका फ़ौरन हाथ के हाथ कर देंगे। सुबह से ये वक्त हो गया है और बच्ची को भी ना तालीम का हर्ज हो रहा है इस चक्कर में। मुझे ये लगता है इन्होंने किसी के भी पेपर जो है ना वो चेक ही नहीं किए इन्होंने, क्योंकि 2 नंबर किसी को 3 नंबर, ये जो एक जो क्वेश्चन है ना वो 10 नंबर का है, तो 2 और 3 नंबर का क्या हिसाब है। एक तरफ 11वीं जमात के तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है तो दूसरी तरफ बोर्ड में मखसूस गिरोह तलबा से पैसे लेकर बगैर लाइन उनके फॉर्म जमा करा रहे हैं, जबकि पैसे ना देने वाले तलबा को हिरासा भी किया जा रहा है। कैमरामैन मन्नान के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। कराची की अदालतों में भी जाली वकीलों की भरमार है। कराची बार एसोसिएशन की नई काबीना ने सिटी कोर्ट में क्रैकडाउन शुरू कर दिया। कई जाली वकीलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। जवाद आसिफ की रिपोर्ट है। साइलिन से वकला के नाम पर पैसे लूटने वालों की शामत आ गई। कराची बार एसोसिएशन ने जाली वकीलों के खिलाफ मुहिम तेज कर दी। अब तक कई जाली वकील गिरफ्तार किए गए। बार के कायम मुकाम जनरल सेक्रेटरी जहाजे मरी का कहना था कि सिटी कोर्ट में बहुत ज्यादा जाली वकील हो गए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। टाउटिज्म डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस वक्त एक नासूर बन चुका है और अभी हम जो पकड़ रहे हैं हर 5वां 6ठा जो बंदा कोट और टाई पहन के घूम रहा है वो टाउट निकल रहा है और हमने अभी तक इनके खिलाफ काफ़ी FIR कटा दिए। मीडिया कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट फौजिया खान ने बताया कि अब तक 9 जाली वकील पकड़े जा चुके हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं। इस वक्त हमने अब तक 9 FIR दर्ज कर चुके हैं जाली वकील के खिलाफ और तकरीबन बंडल्स ऑफ टाउट से इस वक्त सिटी कोर्ट में जो दनादन घूम रहे हैं, कस्टडियों को पकड़ रहे हैं और उनसे जो है फीसिस वसूल कर रहे हैं वकीलों के नाम पर। कराची बार एसोसिएशन रोजाना की बुनियाद पर जाली वकीलों के खिलाफ एक्शन ले रही है। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। नाज़रीन, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गईं। कराची के नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। गवर्नर हाउस में IT टेस्ट पास सुबह की क्लासेस का आगाज 6 फरवरी से होगा। गवर्नर कामरान टिशोरी ने ऐलान कर दिया। कहते हैं कि कराची को IT सिटी में तब्दील होता देखना है। आजिज जमाली की रिपोर्ट।
गवर्नर हाउस को आईटी यूनिवर्सिटी में तब्दील करने का अज़्म। गवर्नर कामरान टिसोरी ने नौजवानों को मायूसी की दलदल से निकालने का बेड़ा उठा लिया। गवर्नर हाउस आईटी यूनिवर्सिटी को अब तक बाकायदा यूनिवर्सिटी का दर्जा तो हासिल नहीं, अलबत्ता मार्की में कायम आईटी सेंटर में बैक वक्त 1000 तलबा और तालिबात की क्लासेस होंगी। 3 घंटे की एक शिफ्ट होगी, रोजाना 3 से 4 शिफ्टें होंगी। इस तरह एक हफ्ते के बाद दीगर तलबा क्लासेस में हिस्सा लेंगे। ये एडवांस आईटी कोर्सेज 1 साल तक जारी रहेंगी, जिनमें 50,000 से ज्यादा तलबा और तालिबात शरीक होंगे। गवर्नर कामरान टिसोरी, समाजी शख्सियत मौलाना बशीर फारूकी, आईटी माहिर सर ज़िया और दानियाल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नौजवानों को खुशखबरी सुनाई और बोले 6 फरवरी से क्लासेस शुरू कर रहे हैं, शहर को आईटी का मरकज बनाएंगे। इस प्रोग्राम में 4.5 लाख से ज्यादा तलबा और तालिबात ऑनलाइन भी हिस्सा ले सकेंगे। आईटी की जो क्लासेस हैं वो बाकायदा तौर पर 6 फरवरी शुरू की जा रही हैं। तमाम तालिब इल्मों को, तलबा को जिन्होंने ये टेस्ट पास किया था, उनके लिए आज खुशखबरी का दिन है। जो 50,000 बच्चे जिन्होंने हमारे पास क्वालिफ़ाई किया वो ऑन साइड यहाँ आके पढ़ेंगे, लेकिन ये आज उनके लिए भी मैं खुशखबरी दे रहा हूँ जो 4.5 लाख बच्चे क्वालिफ़ाई नहीं कर पाए थे, उन्हें भी हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। गवर्नर सिंह ने मीडिया नुमाइंदगान के हमरा गवर्नर हाउस आईटी सेंटर का दौरा भी कराया। कामरान टिसोरी ने अज़म का भी इयादा किया कि गवर्नर हाउस आईटी सेंटर को मुकम्मल यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जाएगा। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आजिज जमाली, कराची। इंटर बोर्ड कराची के इम्तहानी नताइज का मामला, वज़ीर आला सिंध को नताइज के मामले पर ब्रीफिंग की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने साल अव्वल के खराब नताइज की वजह से MCQs के कम तनासब को करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन बोर्ड ने ख़राब नताइज की वजह निसाब की तब्दीली और MCQs की कमी को करार दिया है और सिंध के तालीमी बोर्ड्स की कंट्रोलिंग अथॉरिटी वज़ीर आला सिंध ने कराची बोर्ड के मुतनाज़ नताइज का 22 रोज़ बाद नोटिस ले लिया। वज़ीर आला हाउस में मुनक़िदा इजलास में निगरान वज़ीर आला को इंटर बोर्ड कराची के चेयरमैन की जानिब से गुज़श्ता चंद बरसों के इंटर साल अव्वल के नताइज का डाटा फराहम किया गया और ब्रीफिंग में बताया गया कि गुज़श्ता नताइज सिर्फ 7 से 8% ज़्यादा हैं, जिसकी वजह सिंध में निसाब की तब्दीली है। बोर्ड ज़राए के मुताबिक इंटर बोर्ड के पास 6000 से ज़्यादा स्क्रूटनी की दरख्वास्तें जमा हो चुकी हैं। 3000 फॉर्म्स की स्क्रूटनी रूल्स के तहत की जा चुकी है। निगरान वफाकी वज़ीर तालीम ने 18वीं तरमीम के बाद महकमे तालीम में मुश्किलात का इजहार कर दिया। मदर अली सिंधी कहते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद तालीमी शोबे को बड़े चैलेंजेस का सामना है। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर तालीम व पेशावराना तरबियत मदद अली सिंधी ने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का अचानक दौरा किया। वफाकी वज़ीर ने यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम समेत तमाम क्लासेस का मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी ने कहा कि तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए काम जारी है। सबसे पहले है मयार तालीम और दूसरी बात है स्कूल कॉलेज की कंडीशन हालत ज़ार को बेहतर करना। जब तक हालत बेहतर न होगी तब तक बच्चे आगे नहीं जा सकेंगे। यही सबब है कि मैंने तमाम सूबों की भी हालांकि 18वीं तरमीम के बाद आपको पता है कि तालीम वो सूबों के हवाले, लेकिन फिर भी मैं सिंध आया, पंजाब, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, KP की मैंने तमाम वायद सेंसरों से अलग अलग मुलाकातें की, उनके मसाइल मालूम किए, उनको ये भी कहा कि भाई खुदा के वास्ते आप मयार तालीम दुरुस्त करें। मदद अली सिंधी ने मजीद कहा कि सिंध और पंजाब में स्कूल ना जाने वाले बच्चों के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। मैंने इस्लामाबाद के स्कूलों को बेहतर किया। अभी 20 स्कूल मैंने मुंतखब किए थे, उनको मैंने मॉडल स्कूलों में तब्दील किया है। उनकी जो हालत ही भी मैं नहीं बात कर सकता हूँ। अगर इस्लामाबाद की हालत है तो पर हम पंजाब से क्या शिकायत करें, सिंध से क्या शिकायत करें, दूसरे सूबों से क्या शिकायत करें। तो अब ये है कि मैंने आखिरी बात ये कहूँगा कि मुझे महसूस हो रहा है कि हमारी जो हुकूमतें आती हैं उनके मंशूर से सरकारी स्कूल्स निकल गए हैं। क्यों निकल गए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। वफाकी वज़ीर तालीम ने PhD प्रोग्राम्स की बेहतरी पर भी जोर दिया। कैमरामैन शाज़ेब रजा के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21।
इकरा यूनिवर्सिटी में कैंप्स में राष्ट्रीय फेडरेशन कराची के तहत पाक रूस दोस्ती ताल्लुकात की तारीख से मुतल्लिक तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। रूसी फेडरेशन के काउंसलर जनरल और सरबराह रूसी मरकज़ बराए साइंस और सकाफत ने तालिबे इल्मों से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और रूस के तारीख़ी ताल्लुकात हैं। आला तालीम के हसूल के लिए पाकिस्तानी तलबा के लिए रूस के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। पाक रूस दोस्ती से मुतालिक मालूमात हासिल किए जाने पर तालिबे इल्मों ने भी खूब दिलचस्पी का इज़हार किया। इख्तिताम पर वाइस चांसलर मेहमानों में एजाज़ी शील्ड तकसीम की। करेंसी मार्केट में रुपए की कदर में मिला जुला रुझान देखा जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 2 पैसे कमी के बाद 279 रुपये 48 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 22 पैसे इजाफे से 281 रुपये 8 पैसे पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में रुपए की कदर में मिला जुला रुझान देखा गया और स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 2 पैसे कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद डॉलर 279 रुपये 48 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 22 पैसे इजाफे से 281 रुपये 8 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 32 पैसे कमी के बाद 303 रुपये 75 पैसे और बरतानवी पाउंड 23 पैसे कमी से 356 रुपये 46 पैसे का हो गया। अमाराती दिरहम 10 पैसे इजाफे से 76 रुपये 97 पैसे और इसी तरह सऊदी रियाल 2 पैसे इजाफे से 75 रुपये 2 पैसे का हो गया। अब कुछ बात करें शहर कायद के मौसम की, तो शहर कायद में एक बार फिर बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेश गोई की। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा, जिसकी ज़ेरे असर कराची में कल से 4 फरवरी तक मजीद बारिशें मुतवक्की हैं। शहर में 3 और 4 फरवरी को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बारिश के बायस धुंध की शिद्दत में कमी भी मुतवक्के है, जबकि बारिशों के बाद 6 फरवरी से कराची में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।